Yes, Bede, as you can see, this is your third video of chapter number 13, the final victory for grade 8. Let's start. It's on page number 119. Remember, Amaraga, there's no monster, just a beautiful day. How could I be such an open book to him when half the time I had no idea what was milling around in his head? So here, Hassan comes to Amir and he encourages him, saying that it is a beautiful day, don't be afraid of, don't think that you will get, fail in the competition. He says that I don't know how he comes to know that what is going into my mind. Milling means moving around in my mind. I was the one who went to school. Here Amir says that कि मैं अमीर रिच अफगान का बच्चा हूँ और मैं ही स्कूल गया हूँ, मुझे ही पढ़ना लिखना आता है, मैं स्मार्ट हूँ, लेकिन मुझे स्मार्ट कौन है? Who is more smart? Hassan, because वो मुझे अच्छे से पढ़ लेता है. So it is all written. Let's read. I was the one who went to school, the one who could read and write, and I was smart one. Hassan couldn't read and write first grade textbook, but he would read me plenty. मतलब वो पहली क्लास की बुक भी नहीं पढ़ पाता. कौन? हसन, क्योंकि वो स्कूल ही नहीं गया, लेकिन वो मुझे अच्छे से पढ़ पाता है. Plenty means अच्छे से, बहुत ज़्यादा. That was a little unsettling, but also sort of comfortable to have someone who always knew what you needed. Means here Amir says that there is always one person, like over here Hassan is there, he knows, even उसने कुछ कहा नहीं लेकिन उसको पता चल जाता है what Amir actually needs now. No monster, I said, feeling a little better. To my own surprise, he smelled no monster. Are you sure? He closed his eyes, nodded. Means मैं उसको बोलता है कोई भी नहीं है आसपास, कोई मॉन्स्टर नहीं है, कोई भूत नहीं है, है ना, मतलब उसको वो encouraging words देता है. I looked to the kids scampering down the street. Scampering down means run quickly in excitement. Flinging snowballs. Flinging again is फेंकना snowballs को. It is a beautiful day, isn't it? फिर मैं उसको ये बोलता हूँ कि बहुत अच्छा दिन है, देखो स्ट्रीट पे सब लोग एक्साइटमेंट से भाग रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर स्नोबॉल फेंक रहे हैं, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल डे. Let's fly, he said. Let's do it, I said. Hassan's face brightened. Now Hassan has encouraged Amir to continue the kite flying competition. So that's why his face is brightened. He said he lifted our kite red with yellow borders. कि अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है कि what Hassan used to do. Hassan ने काइट को होल्ड किया गया है, वो उसको लिफ्ट कर रहा है और हवा का रुख देख रहा है, और तब जब अच्छा उसको हवा का रुख पता लग जाएगा किस डायरेक्शन में हवा या विंड ब्लो कर रही है, तो उस जगह वह पतंग को छोड़ देगा, ठीक है ना, वह उसको टॉस कर देगा. तो यही लिखा हुआ है बेटे. Hassan's face brightened. Good, he said. He lifted our kite red with yellow borders just beneath where the central and cross spars met, marked with Saifio's unmistakable signature. Here he talks about कि कहाँ पे खड़ा है हसन पतंग को पकड़े हुए, जहाँ पे दो खंबे जो है, स्पार्स मीन स्ट्रॉन्ग पॉल, जहाँ पे एक लड़की सैफियो ने अपने सिग्नेचर कुछ मार्किंग की हुई है, वहाँ पे खड़ा होके वो अपने हमारे काइट के जो कलर है दैट इज रेड, उसके बॉर्डर क्या है, येलो है, वहाँ पे वो लिफ्ट करता है हमारे काइट को. फिर वो अपने फिंगर को लिक करता है और उसको टेस्ट करता है विंड को, फिर डायरेक्शन देखता है, फिर वो वहाँ पे अमर बताता है. ऐसे हम समर्स में भी जो हसन है वो भी हमेशा विंड को चेक करने के लिए कि हवा किस रुख की है, तो वो डस्ट को हमेशा ऊपर गिरता है और देखता है कि डस्ट किस डायरेक्शन में ब्लू कर रही है या फिर विंड किस डायरेक्शन में ब्लू कर रही है. स्पूल रोल्ड इन माई हैंड्स अंटिल हसन स्टॉप्ड अबाउट 50 feet अवे, मतलब 50 फीट की दूरी पे हसन स्टॉप हो जाता है और मेरे हाथ में स्पूल है, स्पूल मीन्स चरखड़ी. ही हेल्ड द काइट हाई ओवर हिज हेड लाइक एन ओलंपिक. उसने काइट को पकड़ा हुआ है जिस तरह के एक ओलंपिक एथलीट होता है जो कि गोल्ड मेडल को ऊपर सबको दिखाता है. आई जब द स्ट्रिंग ट्वाइस. जब मीन्स पुल करना, स्ट्रिंग को, डोर को मैंने खींचा 2 बार, जो कि हमारा यूजुअल साइन है. हसन टोस द काइट. टोस मीन्स उसने जो काइट को छोड़ दिया. I took a deep breath, exhaled, pulled on the string. Within a minute, my kite was rocketing to the sky. What happens now? कि मैंने डीप ब्रेथ लिया, फिर मैंने अपने स्ट्रिंग को खींचा और एक ही मिनट में मेरा जो पतंग है वो हवा में उड़ रहा था. It made a sound like a paper bird flapping its wing. जो मेरा
काइट है वो पेपर बर्ड की तरह अपने विंग्स को फ्लैप कर रहा है। हसन क्लैप्ड हिज हैंड, वो खुश है, हसन विसल कर रहा है और मेरी तरफ आ जाता है। फिर वो स्पूल को पकड़ लेता है, होल्डिंग ऑन टू द स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को पकड़ लेता है। इस स्पन इट क्विकली टू द रोल, फिर जितने भी वो लूज जो डोर होती है उसको वो रोल कर देता है स्पूल पे। एटलीस्ट 2 डजन काइट, यहाँ पे बेटे डिस्क्रिप्शन है कि वॉट इज द सीन ऑफ द स्काई। एटलीस्ट 2 डजन काइट्स ऑलरेडी हंग इन द स्काई, कि 2 दर्जन के लगभग काइट ऑलरेडी स्काई में थे और वो पेपर शार्क की तरह अपने प्रे को ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे प्रे मीन्स शिकार, और एक पतंग दूसरे को ढूंढ रहा है काटने के लिए। विद एन आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर ये डबल हो गए। रेड ब्लू येलो काइट्स ग्लाइडेड एंड स्पन इन द स्काई, स्वर्ल कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं स्काई के अंदर। अ कोल्ड ब्रीज वफ्टेड थ्रू माई हेयर, कि एक हवा का झोंका, ठंडे हवा का झोंका मेरे हेयर से गुजरा। वफ्टेड मीन्स वर्ल। द विंड वॉज परफेक्ट फॉर काइट फ्लाइंग, काइट उड़ाने के लिए परफेक्ट विंड थी। ब्लोइंग जस्ट हार्ड इनफ टू गिव सम लिफ्ट, मेक सम स्वीप ईजियर। नेक्स्ट टू मी हसन हेल्ड द स्पूल, हिज हैंड्स ऑलरेडी ब्लडेड बाय द स्ट्रिंग। अब यहाँ पे बात करें कि परफेक्ट विंड है और हसन के हाथ में स्पूल है, चरखड़ी है, और उसके हाथ ऑलरेडी ब्लड से लथपथ हो गए हैं क्योंकि उसने पकड़ा हुआ है तार को, मीन्स डोर को। Soon the cutting started and the first of the defeated kites whirled out of the control, मतलब कटिंग स्टार्ट हो जाती है, पतंग की कटना शुरू हो जाता है। एक जो पतंग है नीचे घूमते हुए नीचे आता है। They fell from the sky like shooting stars, किस तरह गिरते हैं वो, शूटिंग स्टार्स की तरह गिरते हैं। रिपलिंग टेल्स हैं उनकी, रिपलिंग मीन्स वेविंग टेल्स हैं उनकी। देन शॉवरिंग द नेबरहुड्स बिलो विद प्राइजेस फॉर द काइट रनर्स, मतलब नेबरहुड्स में गिर जाते हैं और काइट रनर्स के लिए ये प्राइज है। How I could hear the runners now hollering means shouting as they ran the street, means shouting of the kite runners can be heard. Someone shouted reports of fight breaking out to streets down, मतलब यहाँ पे मुझे लड़ाई होने का एहसास भी पता लगता है, मीन्स नीचे आसपास कहीं लड़ाई भी हो रही है, इस बिकॉज ऑफ काइट ओनली। I kept stealing glances at Baba sitting with Rahim Khan on the roof, wondered what he was thinking. Was he cheering for me or did a part of him enjoy watching me fail? They were coming down all over the place now, the kites. I was still flying, but my eyes kept wandering over to Baba bundled up in his wool sweater. Was he surprised I had lasted as long as I had? Here, Amit talks about that when he look to his father and he wonder that कि मेरे बाबा मेरे फादर क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं कि मैं इतने टाइम तक कैसे टिका हुआ हूँ, कि ये सोच रहे हैं कि मैं कब मतलब फेल हो जाऊँगा इस कंपटीशन में। उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं ठंड वाले, यू नो, इट्स ऑल लाइक दिस। यू डोंट कीप योर आइज टू द स्काई, यू वॉन्ट लास्ट मच लॉन्गर। हियर आमिर सेज दैट कि अगर आप अपनी नज़र हटा लेते हैं स्काई से तो आप कंपटीशन में ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते। आई स्नैप माई गेज बैक टू द स्काई, ब्रेक, दैट इज़ ब्रेक, कि मैंने अपनी नज़र वहीं टिकाई रखी। आई रेड काइट वॉज क्लोजिंग ऑन मी, मतलब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है कि एक रेड काइट मुझे काटने के लिए आ रहा है। आई वुड कॉट इट इन टाइम, आई टेंगल्ड अ बिट, हम दोनों में मतलब हम उलझ गए एक दूसरे के साथ। एंडेड अप बेस्टिंग हिम when he became impatient, tried to cut me from below. So here it was. Now up and down the streets kite runners were returning triumphantly, the captured kites held high, means streets जो हैं they are full of kite runners and they are holding the kite in their hands. I hope you have understood up to here. Thank you.